أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ کیف حالکن یا اخوات؟ الحمدللہ الحمدللہ اللہ علی کل حال۔ نحن بخیر الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اچھا جی، آج ہمارا جو ربیین کا سیشن تھا، اب چونکہ یہ مضاف الیہ اور مضاف الیہ اس کو تعلق کی جوڑی بھی کہہ دیتے ہیں، اضافت کی جوڑی بھی کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کہتے ہیں اس کو مرکب اضافی۔ یہ ریپیٹ ہوئی جا رہا ہے نا، تو پھر اسی لیے آج صرف سارے آپ کو کچھ اور کانسیپٹس بھی ملا کر کروا دیے۔ اسی طرح سے ریویژن کلاس میں ضرور آئیں۔ اب ہم صرف اسی طرح سے ریویژن نہیں کریں گے کہ جو آپ نے 18B میں پڑھا ہوگا 18C سے پہلے اسی کی ہم ریویژن کروا دیں۔ سسٹرس بڑی ہی محنت سے یہ ساری چیزیں تیار کرتی ہیں، پھر ڈھونڈتی ہیں اس کے ساتھ یہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے۔ تو میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ آیا کریں، یا پھر اگر یہ ایک بوجھ لگتا ہے تو پھر اس کو آپ فرض سمجھ کر آئیں، آنا ضرور ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 130 اور 131، چھوٹی چھوٹی دو آیات آج ہم کریں گے۔ کل والا ہمارا قرآن پاٹ جو تھوڑا سا ہیوی تھا، تھوڑی سی لمبی آیات تھی۔ ہمارا صفحہ نمبر 19 ہے، اشارہ بھی ہم پڑھ رہے ہیں، اور اب ہم تیزی سے اپنے کورس کے تکمیل کے مراحل کی طرف جا رہے ہیں۔ مجھے دن بدن خود بھی احساس ہو رہا ہے کہ الحمدللہ سے ہمارا یہ سفر جلدی جلدی سے کمپلیٹ ہو گیا، گزر گیا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ سورۃ الفاتحہ اور سورہ البقرہ ہم نے QC2 میں جز 1 شروع کیا تھا، اور اس چیز کو ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں، ایک پارے کے 20 صفحات کو 5 پیجز میں تقسیم کرتے ہوئے یہ 4-5 کورسز بنائے گئے۔ اس کے بعد QC6 میں ہم نے انشاءاللہ سورہ البقرہ کمپلیٹ کرنی، یعنی کہ پورا دوسرا پارا، اور تیسرے پارے میں جہاں تک ہماری سورہ البقرہ کمپلیٹ ہوتی ہے۔ تو ہم نے اس کو کس طرح سے شروع کیا؟ سورہ فاتحہ کو ہم نے کورس 1 میں بھی دیکھا تھا، لیکن تھوڑا مختلف انداز سے دیکھا تھا۔ پھر ہم نے اب اس کو جب کورس 2 کو شروع کیا، پھر ہمارا تھوڑی پہچان ہوگی، اشارے ہیں، پھر اس طرح سے کیسے مختصر سی شرح دعا پلان وغیرہ کے ساتھ سیکھتے ہم سورہ بقرہ کو شروع کر کے۔ جیسے ہی سورہ بقرہ شروع کی، ہمارا پڑھنے کا کچھ انداز بھی بدلا، کچھ ہمیں تھوڑا سا ایسے لگا کہ جیسے QC1 سے یہ بالکل مختلف ہے، لیکن QC2 کمپلیٹ ہوتے ہی کافی ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ جاتی ہیں، اور الحمدللہ سے وہ لوگ QC3 میں آتے ہیں جو واقعی پڑھنے میں سنجیدہ ہوں، اور جن کو پھر یہ کہ ساتھ ساتھ مزید جو سیکھ رہے ہیں وہ پڑھنا بوجھ یا مشکل نہ لگے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق تو بے شک ہے، لیکن کچھ بھی آپ کو بنا ہاتھ پاؤں ہلائے یا محنت کیے نہیں ملتا ہے۔ اپنے اس ذوق شوق کو جاری رکھیے، اور انشاءاللہ جہاں بھی جیسے قرآن کی تعلیم، ضروری نہیں کہ آپ اسی کورس پر بس ہو کر بیٹھ جائیں مختص کہ بس یہ ہے تو یہی کرنا، آپ کو جہاں بھی علم ملے ضرور حاصل کیجیے۔ QC2 میں ہم نے ہدایت کے بارے میں پڑھنا شروع کیا، متقین جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی۔ اس کے بعد کافرین اور منافقین کے 2 گروہ تھے۔ اس کے بعد ہم نے اور الحمدللہ سے بہت سارے اشارے پڑھے، اور ان کو اس طرح سے دیکھا کہ اس میں آنے والے کمزور افعال، اور اسی طرح سے جتنا ہم نے کور کر لیا تھا QC1 میں وہ ساری گرامر کو بھی دیکھ لیا۔ پھر ہم نے صفحہ نمبر 4 اور 5 پر حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں پڑھا۔ QC3 سے ہم پڑھتے چلے آئے بنی اسرائیل، وہ بڑی قوم جنہیں اللہ رب العزت نے ہدایت نصیب فرمائی اور ان پر نعمتوں کا انبار تھا، لیکن ان لوگوں نے قدر نہیں کی۔ اور اسی طرح سے QC4 کا پورا کورس، اور اس کے بعد QC5 میں ہم نے صفحہ نمبر 17 تک بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھا۔ صفحہ نمبر 18 سے ہم نے شروع کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام، اب ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور اس کے ساتھ ہم آگے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے، اور یوں ہمارے 20 پیج پورے ہوں گے اور ہمارا ایک پارہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ کورس 5 ہم نے اپنے
لیفٹ ہینڈ پر کیا 2 3 4 اینڈ 5 اور اس کے بعد اس طرح سے ہم پورا کرتے جائیں گے دونوں دونوں ہاتھوں پر اپنا کورس 6. اچھا جی، ہمارے جو اشارے تھے جہاں تک ہم کمپلیٹ کر کے مڈ کوئز دے چکے ہیں. نسخ و نسیان، کیا تم بھی سوال کرو گے؟ خواہش اہل کتاب کی جنت صرف یہود و نصارہ کو. یہود و نصارہ لڑے آپس میں، ظالم روکے مسجد سے، عیسائی بنائے بیٹا اللہ کا، بے علم کہیں بات کرے اللہ. ناراضی ہوں گے یہود و نصارہ بنی اسرائیل، یاد کرو نعمتیں ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش اور کامیابی اور بیت اللہ اور مکہ. اور اسی طرح سے ہم نے جو اگلے اشارے جو 2 اس ویک میں کمپلیٹ کرنے ہیں، ایک ہم نے پڑھ لیا ہے بیت اللہ کی تعمیر اور دعائیں. اس کو ہم نے کیسے ریلیٹ کرنا ہے؟ آپ تعمیر کو یرفع اور القواعد سے لگا لیں، اس کو ہائی لائٹ کر لیں، اور دعائیں جہاں سے ربنا 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 لکھا وہاں پر آپ دعاؤں کو ہائی لائٹ کر لیں، تو انشاءاللہ یہ اشارے کا نام یاد ہو جائے گا. اس کے بعد کویسچننگ انداز ہے، اسٹائل کیا ہے کہ سوال پوچھا جا رہا ہے کون منہ موڑے ملت ابراہیمی سے، کہ کیا کوئی ایسا بے وقوف بھی ہو سکتا ہے کہ جو ملت ابراہیمی سے منہ موڑ لے. اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ ڈیٹیل پڑھتے ہیں. اس کے بعد اگلے جو 2 اشارے ہیں وصیت ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی، اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے وہ امت گزر گئی. مختصر اشارے تعمیر ملت وصیت امت. ٹھیک ہو گیا جی؟ چلے جی، یہ ہم پڑھ لیں اپنا اشارہ، اس کے بعد پھر ہم اس کو جوڑ لیں گے اپنے پوائنٹر کو اپنی آیات کے ساتھ. پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یعنی کہ 2 علیہما، ٹھیک ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے تھے. اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے تعلق سے مزید تفصیل بیان فرما رہا. ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی ہمارا تھوڑا تھوڑا جو گرامر اپلائی ہو رہی ہے نا اس کو بھی دیکھ لیا کریں گے. 2 تھے تو پھر ہما والا جو سیگا تھا 2 والا اس کو استعمال کیا گیا. اسباق آج کی آیات میں کیا ہوں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام امام، قائد اور ایک کامل مسلم تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں انسانیت کی امامت اور قیادت کے لیے چن لیا تھا. صرف بے وقوف اور جاہل شخص ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے راستے کو چھوڑ سکتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاص صفت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور کائنات میں غور و فکر کرنا. انہوں نے مکمل طور پر خود کو اللہ کے سپرد کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے جہاں جیسے انہیں آزمائش میں ڈالا، انہوں نے نہ صرف ان آزمائشوں پر پورا اتر کے دکھایا، اس کے بعد بھی وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے، اور صرف اپنے لیے نہیں، انہوں نے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی دعائیں مانگی. آج کے ہمارے لیسن میں 2 نئے الفاظ ہیں جس میں سے صرف شاید کھول لیں گے تو مجھے لگتا ہے وہ بھی آپ کو لگے گا کہ یہ اردو سے ملتا جلتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی کہ وہ بھی آپ کے لیے بالکل نیا ہے. ہم یوں سمجھ لیتے ہیں کہ آج کے جو جتنے بھی الفاظ ہیں یہ سارے کے سارے ہمارے کچھ اردو میں یوز ہو جاتے ہیں، کچھ ہم ویسے ان سے فیملیئر ہو چکے ہیں. اچھا جی، یہاں پر ہم تلاوت کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا تھوڑا سا جو مغرب کا ٹائم ہے اس کو بھی ہم بیچ میں سیٹ کر لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمین. صدق اللہ العظیم. اچھا جی، تلاوت کے دوران میرا ایک یہ لفظ تھوڑا سا خراب ہو گیا، اسلم تو تھا تو مجھے اسلم سانس ٹوٹ گیا تھا، تو روکنے کے لیے مجھے یہاں پر حرکت تبدیل نہیں کرنی چاہیے تھی. اللہ تعالیٰ ہماری ان غلطیوں کو معاف فرمائے اور بہترین انداز میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا جی،
अब हम इस आयत का एक दफा तर्जुमा देख लेते हैं, रमा तर्जुमा की किस तरह से बनाया गया। और कौन मुंह मोड़ता है मिल्लत से इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सिवाय, जिसने बेवकूफ बनाया खुद अपने आप को, और अलबत्ता तहकीक हमने चुन लिया उसको दुनिया में, और बेशक वो आखिरत में अलबत्ता नेकों में से ही है। सबसे पहले तो आप देखिए कि मन मन के बारे में हमने क्या पढ़ा था QC4 में। शर्तिया मन शर्तिया, और जब मन शर्तिया होगा तो मुदारे पर कैसे असर करेगा? मजूम कर देगा। मजजूम कर देगा, लेकिन यहाँ मजजूम नहीं हुआ, क्या वजह हो सकती है? अच्छा जी, इसका सिंपल सा आंसर यही है कि यहाँ पर मन शर्तिया नहीं यूज हुआ, यानी कि शर्त के माना नहीं दे रहा। ठीक है क्या? इस और बात को भी दूसरा हमने देखा करना है कि ये जी यरगबू जो है ये फाइल भी है, मुंह मोड़ने वाला। किसका फाइल? हम्म, नहीं जैसे हमने पढ़ा था कि इसके ऊपर शायद आगे कुछ आए फेल। हाँ, चलिए चलिए देखते हैं। ये फेल मुदारे है वैसे। मेरा ख्याल है आपने दो चीजों को कहीं आपस में गड़बड़ कर लिया, कोई नहीं, इसको इंशाल्लाह अभी के अभी हम सुलझा लेंगे। मैं जो बात आपको मन के हवाले से बताना चाह रही हूँ वो ये है कि हमने कुछ अल्फाज पढ़े हैं। इसमें ये सवालिया मन आया है ना, कौन वाला है इन ना, मन शायद इस मा, वजह से। जी बिल्कुल, ये जो वाला माना नहीं दे रहा, ये इस्तेफाम वाला माना दे रहा है, ये शर्त वाला माना नहीं दे रहा। ठीक है, शर्त वाला माना नहीं है। अब इन हो, मन हो, मा हो, जहां शर्त वाला माना देगा वहां ये मजजूम कर देगा। ठीक है, जहां शर्त वाला माना नहीं है फिर ये फेल मुदारे को मजजूम नहीं करेगा, यानी छुरी नहीं चलेगी ना। यहाँ पर अब ये शर्त नहीं थी कोई कि अगर कोई मुंह मोड़ता है तो उसके साथ, जैसे हम इसको इस तरह से समझ लें। अरबी के अल्फाज हम कुरान पाक के तो नहीं खराब करेंगे, हम उर्दू में इसको समझने की कोशिश करने के लिए कहते हैं कि जैसे कहा जाता कि अगर कोई मुंह मोड़ता है मिल्लत इब्राहिमी से तो वो अपने आप को बेवकूफ बनाता, तो उसमें एक फा भी यूज हो जाता है। तो यहाँ पर शर्तिया नहीं था, इसलिए इससे मुदारे पर कोई असर नहीं पड़ा। सिस्टर मैं एक यर जी सिस्टर अगर समझे उर्दू का तर्जुमा हम ना पढ़ रहे हो और अगर हम मतलब जैसे हम मान अगर पढ़ लिया है तो उसको हम ये भी तो कह सकते हैं जो मुंह मोड़े। तो मेरा कहने का मतलब ये कि अगर उर्दू ना हो तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि शर्तिया अच्छा, है या और नहीं। अब आपको एक मैं मजे की बात और बताती हूँ। मेरा मकसद अब आपको कंफ्यूज करना नहीं, कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसके लिए यही तो है कि हमें समझना ही है ना। ये अब जो मन है ना, इसको एक और चीज भी कहते हैं, ये है इस्तेहफामिया इनकारिया। ठीक है, अब ये इनकारिया क्या है? जैसे हम उर्दू में बात करें ना, क्या तुम नहीं थे, कुछ भी हम सवाल पूछते हैं ना जिसमें क्या के साथ हम एक नफी, खुद ही नफी कर रहे होते हैं, ये उस टाइप का है। ठीक है, और जैसे हम कहते हैं मन रब्बू का भी है, उसमें भी का ही है ना, कौन है तुम्हारा रब, कौन है। कौन है तुम्हारा मन रब? रब्बू का, और मन एक दीनू और का। चीज है कि कुरान पाक में कहीं भी अलामत तराकीम, यानी कि जो क्वेश्चन मार्क हो गया, कौमे है, ये चीजें नहीं होती ना, उसके बावजूद हमें कुछ चीजों का अंदाजा हो जाता है। अब यहाँ पर जो और मन क्यों वाला या कौन वाला जो हमने माना देखना है, उसके लिए तो हम ये सारा तरद्दुद कर रहे हैं कि हम इसको समझे कि कहाँ पर कौन वाला माना यूज हुआ है और कहाँ पर जो वाला माना यूज हुआ है। ठीक हो गया? अब ये जो बात है इनकारी वाली, इसको आपने इंशाल्लाह अभी थोड़ा सा आगे जाके पढ़ना है। हो सकता है कि सूरह अल बकरा में ये वाला कॉन्सेप्ट आए ही ना, ये अगली कुछ सूरतों में आपको मिलेगा। अभी इस वाले को छोड़ते हैं, अभी सिर्फ इसको इतना याद रख लें कि यहाँ ये शर्त वाला नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर हम इसे देखते, मन वाला होता तो फिर ये मजजूम हो जाता है। लेकिन ये जो बात अभी सिस्टर पूछ रही कि पता कैसे चलेगा, आप एक सिंपल सा मुदारे पढ़ते हैं, उसमें भी जब तक आप आगे पीछे से देखेंगे नहीं, आपको तर्जुमा देखे बगैर अंदाजा हो ही नहीं सकता ये अंता वाला था या हिया वाला था। ठीक हो गया ना? हम माँ का तर्जुमा जो वाला भी करते हैं, क्या वाला भी, नहीं वाला भी, तो उसके लिए इन सारी चीजों को समझना होगा। जो समझते जाएं, पढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे फहम को इतना सिस्टर, बेहतरीन कर दे कि हम समझ सकें इन बातों को।
ٹھیک ہو گیا सिस्टर جی. वैसे रागिब जो है या रगाबू रागिब होने का मतलब इधर जैसे उन्होंने मुंह मोड़ता है ना, वैसे तो रागिब होने का मतलब किसी की तरफ वो होता नहीं कि माइल होना नहीं आप होता. मुझे हाँ, आप मुझे बुक में से इसका ठीक ठीक माना बताएं, जहां पर अफ़आल लिखे हैं वहां पर इसका माना क्या लिखा है. उसने मुंह मोड़ा। अच्छा यही लिखा हुआ, उसने मुंह मोड़ा. जी जी जी। इसका एक और माना भी है. ये एक आवाज मुझे पलट के आ रही, देखिएगा किसके मोबाइल से ये ये आवाज. सिस्टर फिरोजा के माइक से आ रही है। अच्छा मैं आपको भेजती हूँ फेल। हाँ नहीं, ये मेरे पास, हाँ जी, मैंने इसका आप लोगों को भेजती भी हूँ. ये आपने इसमें से ना एक चीज याद रखनी है, इसका पूरा माना और इसके मुतालिक जो छोटी सी एक चीज है, इसको याद भी रख लीजिएगा. ठीक है. किसी की तरफ यानी कि हो जाना पूरी तरह से, किसी की तरफ माइल मुतवज्जा होना हो जाना, हाँ या जाना किसी की तरफ रागिब हो जाना, किसी को चाहना, ख्वाहिश करना. ठीक है. हाँ जी. इल्तिजा करना, मांगना, ये सारी चीजें जो रगाबा, ये जो रागिबा, ये बाब सीन से होगा. ठीक है. ये वाला जो माना आता है, ये कहाँ तब्दीली आती है? तब्दीली आती है जहां पर रागिबा टेबल के साथ अन आ जाएगा. इसको हम कहते हैं, अन का ये जो प्रेपोजिशन आती है इसको कहते हैं सिला. ठीक है. जब अन का सिला होगा तो माना बन जाएगा मुंह मोड़ना. और जो दूसरा रागिबा है जिसपे हम कहते हैं चाहना, ख्वाहिश करना, वहां पर आपको ये इला के साथ नजर आएगा. जैसे हम कहते हैं कौला वाले टेबल के पास बाद आप देखिएगा ली आएगा. और जहां पर हमने बात की थी खरीदो फरोख्त की, अगर बी का सिला आ जाए तो मतलब होता है कि किसी चीज के बदले में कोई चीज खरीद लेना. ठीक है. ये जो छोटी छोटी प्रेपोजिशन हम यूज करते हैं ना, इसकी वजह से क्या होता है, माना तब्दील होते हैं. कुरान पाक में बहुत ज्यादा अल्फाज नहीं है, लेकिन थोड़े अल्फाज की रद्दो बदल से माना चेंज हो जाते हैं. तो अब आपने याद रखना है कि ये जब अन के साथ यूज होगा तो ये मुंह मोड़ने वाले माना में आ जाएगा. अच्छा जी. उसके बाद है अन मिल्लती. अन मिल्लती और मिल्लती इब्राहिमा. सिस्टर अफसाने हैंड रेज किया है. अच्छा मैंने ये कहना था, इसको याद करने के लिए ना इला के साथ रगबत का वर्ड लिख लें, फिर याद रहेगा। चाहना, बल्कि अन रगबत अन करना। लिख लें. अन आपने यहाँ पर हम्म अन यूज करना, अन लिख लें, वो ज्यादा याद अन रह लिख लें। जाएगा. अन के हाँ नहीं, मेरा मतलब था रगबत उर्दू का वर्ड है ना, तो इला के साथ लिखेंगे साइड पे नोट ऑपोजिट, याद हो जाएगा तो फिर ये भी हो जाएगा। यहाँ पे हाँ मुंह ठीक मोड़ने हो गया वाली बात है और जी. जहां पे भी मुंह मोड़ने वाली बात होगी वहां पर हमें अन नजर आएगा. अच्छा जी. मिल्लती इब्राहिम, अन ने मिल्लती को किया मजरूर. अब मिल्लती के बाद इब्राहिम आया, और ये बात हम कल भी कर चुके हैं कि इब्राहिमी नहीं हो सकता. अब इसको कहते क्या है, कुछ इनको हम थोड़ा सा नाम की तरफ अभी मैं नहीं जाना चाह रही. कुछ ऐसे अस्मा हैं जो जेर कबूल नहीं करते, वो चाहते ही नहीं कि हम पर जेर लगाई जाए. तो तब हम क्या करते हैं, जबर लगाते हैं. एक और बात याद रखनी, पेश नहीं लगानी. ठीक है. पेश ने इसकी रद्दोबदल वाला काम नहीं करना. यहाँ पर काम करेगा जैसे हम कहते हैं मुस्लिमूना, और जब हम नसब और जर की हालत लाते हैं तो दोनों में या नून लेके आते हैं ना, तो यहाँ पर भी हम जबर ही लेके आएंगे. इसके बाद है इल्ला. इल्ला का माना है सिवाय, जैसे हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह. इसके बाद है मन. अब ये जो मन है ये जो वाला आ गया. अब कोई भी इंसान, जैसे मैं भी अगर इसका तर्जुमा ना देखूं, मुझे नहीं पता चलेगा कि कहाँ पर कौन वाला माना आ गया और कहाँ पर जो वाला माना आ गया. हाँ मैं बहुत गौर करूं, मैं दोनों जगह पर तर्जमे बना के लिखूं, उसके बाद मुझे सही लगे, फिर भी मुझे चेक करवाना पड़ेगा, क्योंकि कुरान है, इसमें हम किसी तरह की गलती कर ही नहीं सकते. ठीक हो गया जी. सफीहा. सफीहा यस्फाहु, ये वाला थोड़ा सा पढ़ा हुआ लफ्ज है. कहाँ पढ़ा हमने इसको? नहीं पढ़ा है मैंने, सुफहा सुफहाई. बेवकूफ लोग। हाँ जी ये हमने पढ़ा बेवकूफ. था असुफहा. ठीक है. ये हम यानी कि ये एक लफ्ज नया लिखा हुआ था, ये भी उर्दू जैसा हो गया. ये भी हम पढ़ चुके हैं इसको. हम QC2 में, सूरह बकरा तो ये चल ही रही है. हाँ जी इसके बाद है अलाइन, नफ्सा. जी सॉरी वो मैं कोई बताने लगी थी, अलाइन सुफहाई। जी बिल्कुल. जजाकिल्लाह खैर सिस्टर. अच्छा जी. अब साफिहा फेल है, और अगर मैं पूछूं कि इसमें क्या छुपा हुआ है,
فائل کون سا ہوگا؟ کیونکہ ہمیں فیل اور اس کے بعد فائل چاہیے. ہوا. ہوا. ہوا ہوا. صافیہ وہ اب بیوقوف آپ نے ہوا. من کو نہیں بنانا ترجمے کے حساب سے جس نے بیوقوف بنایا لگ رہا ہے ایسے، لیکن جہاں آپ کو کوئی اسم فیل سے پہلے نظر آ گیا تو آپ نے اسم سے شروع ہونے کے بجائے اسے اسمیہ جملہ کہہ دینا ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے میں نے کل آپ کو بتایا تھا نا، دو ترکیبیں بھی ہو جاتی ہیں. اب ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں من کو ہم بنائیں مبتدا، آگے جو پورا جملہ فعلیہ اس کو خبر بنا لیں. لیکن چونکہ اتنی زیادہ ڈیٹیل میں ہم نہیں جانا چاہتے تو ہم کہیں گے کہ من کو ایک اور بھی چیز، جیسے اس کا اپنا نام ہے، اس کو ہم اسم موصول کہتے ہیں، اس طرح سے بھی بنا کے آگے جا سکتے ہیں. اب ہم یہاں پر فعلیہ جملے کی بات کر لیتے ہیں. صافیہ کے اندر ہوا ہمیں مبتدا کیسے ہوگا؟ یہ جو مجھے میری آواز پلٹ کے آتی ہے یہ ڈسٹرب کر رہی ہے. من مبتدا کیسے ہوگا؟ اگر ہم اسمیہ جملے کے طور پر لیں، من اسم ہے، یہ بات لکھ لیں اپنے پاس، من اسم ہے. ٹھیک ہے. اس کو حرف نہیں کہنا، یہ من حرف ہے. من جو ہے من کسی کے بارے میں بات کی جاتی نا، من اسم ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر مجھے مفعول ڈھونڈ کے دیں جلدی سے، پھر ہم آگے بڑھیں. نفسا. نفسا یہ ہمارا مفعول بھی ہو گیا. نام یاد رکھنا، مفعول بھی. ٹھیک ہے. اور اب یہ اس ہو کو کیا بنائیں؟ یہ مرکب اضافی کی جوڑی نفسا ہو. مرکب اضافی. تو اب یہ نفسا ہمارا مضاف ہو گیا. اب جو ہو ہے یہ ہمارا مضافن الیہ بن گیا. ٹھیک ہے. اب یہ والی ہا، اس کو ہم کیا بنائیں؟ یہ صفیحہ کا ہاں کہہ رہی ہیں؟ یہ صفیحہ کا ہا ہے اور اس کو ہم یہ پورا حصہ فیل کا یہ حصہ تو ہے پورا صفیحہ. لفظ ہے، یہ صافیہ کا حصہ لفظ ہے، روٹ یہ لیٹر. پورا حصہ ہے. ٹھیک ہے. روٹ لیٹر میں ہے. ان چیزوں سے ہم نے کنفیوز نہیں ہو جانا کہ اس ہا کو بھی کچھ بنائیں. جی. ٹھیک ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. میں مشکل سے سوال ڈھونڈ کے لاتی ہوں، آپ جلدی سے اس کا جواب دے دیتے ہیں. الحمدللہ میرا دل باغ باغ ہو جاتا چیز ہے. سسٹر یہ کہ میرا خیال ہے کہ کہیں جہاں بھی آئے گا نا ہو والا، اس کا وہ ترجمہ آئے گا. ہا کا تو میرا خیال نہیں کہیں بھی آتا وہ والا ترجمہ. یہ بھی ایک ہنٹ ہے. الحمدللہ یہ جو ہے ہماری جو ضمیر ہے، اس پر ہمیشہ ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ربوہ ضمہ الٹا آتی پیش ہے. آتا ہے. ہاں اور اگر جہاں پر اس کے پیچھے یا ہو یا زیر ہو تو پھر ہی آ جائے گا. ٹھیک ہے. ہاں آتی نہیں ہے. یہ بھی ایک اچھا آپ نے اس میں شامل کر لیا ہنٹ. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہے وا. اب یہاں تک کی ساری ترکیب ہمیں سمجھ آ گئی. میں یرغبو، اب اس من کو بھی ہم بنا سکتے ہیں مبتدا. اس اس کا کو مبتدا یرغبو کا مفعول بھی ہے. یرغبو یار اس کا نہیں ہے، نہیں ہے. اور جہاں نہیں ہوتا نا وہاں پر سمجھ لیں کہ کوئی نہ کوئی چیز اندر چھپی بھی ہوتی ہے جس کو ابھی نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر یعنی کہ مفعول بھی کا جو ایک خاص لفظ تھا اس کو لکھے بغیر بھی بات پوری سمجھ میں آ گئی. ٹھیک ہو گیا. اس کو ہم تھوڑا سا اپلائی کیا کریں نا، اگر اردو کی طرح کہ اگر ہم کسی چیز کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہوں تو ایک خاص نام نہ بھی لیں بیچ میں سے تو بات بعض دفعہ یہ کہ پوری کی پوری سمجھ میں آ جاتی ہے. جیسے ہم لکھ کے سمجھ لیں کہ ہم بچوں سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ آج کون کون سا کام کیا ہے، تو وہ اب ساری کتابوں کے نام نہ بھی لیں، اگر ہمیں اندازہ ہے ہی کہ ان کی کون کون سی کتابیں ہیں تو ہمیں اس میں سے پتہ چل جائے گا وہ کہ 3 کام کیے ہیں. اب ضروری نہیں کہ وہ اس کے نام بھی بتائے کہ یہ کام کیے. یہاں پر مفعول بھی کچھ ایسے ہیں جن کو مفعول کی ضرورت ہے ہی ہے کہ اس کا پھر جیسے کانا والے ٹیبل میں ہمیں جیسے اس کی خبر چاہیے ہوتی ہے کہ اس کے بغیر اس کا معنی پورا نہیں ہوتا، اور جہاں پر کام آئے گا وہاں اس کے ساتھ اس کا مفعول بھی ہی ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اب یہ ہمارا جملہ یہاں تک ہوا کمپلیٹ. یہ جو ایک من یرغب عن ملت ابراہیم، یہاں تک ایک فعلیہ جملہ ہو گیا. اور اگر من لگائیں گے مبتدا کریں تو فعلیہ جملے کو ہم کر سکتے ہیں کہ یہ پورا کا پورا جملہ مبتدا کی خبر ہے. ٹھیک ہو گیا. 2 ترکیبیں ہو سکتی ہیں، اور کئی جگہ پر یہ بھی ہوگا کہ جیسے اب کل ہمارے جو جملے تھے اس میں 3 ترکیبیں بھی بن رہی تھی، سب ٹھیک ہوتی ہیں. آپ سے جو سوال پوچھے جائیں گے وہ سمپل ہوں گے. انشاءاللہ ہم آپ کا جو ہوگا کوئز ہوگا انشاءاللہ آسان ہی ہوگا. یہ سمجھ لیں میں آپ کو تیار کر رہی ہوں QC 6 کے لیے. واؤ یہاں پر آ گیا عطف کے لیے، اور یہ جو لا ہے نا لا، یہ آتا ہے تاکید کے لیے.
ٹھیک ہے، ہم حرف کے ساتھ بھی دیکھتے ہیں، اسماء کے ساتھ بھی دیکھتے ہیں، افعال کے ساتھ بھی دیکھتے ہیں. اور قد کیا کرتا ہے، یہ اس بات والا معنی لے آتا ہے کہ اس میں کسی طرح کا کوئی شک یا شک کی گنجائش ہے ہی نہیں. ٹھیک ہو گیا. والا قد، اور البتہ تحقیق، بغیر کسی شک شبے کے پورے یقین کے ساتھ. کیا بات کی اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصطفیناہو، ہم نے چن لیا اس کو. کس کی بات ہو رہی ہوگی؟ ابراہیم علیہ حضرت السلام اصطفیناہو. ابراہیم، حضرت ابراہیم. الحمدللہ. یعنی کہ ہم نے چن لیا. کیا چن لیا؟ ان کو نیکوکاروں میں سے. اب اصطفا، یہ کون سا ٹیبل ہو سکتا ہے؟ اختلافا سے ہے اقتدا کے ساتھ اہتدا جیسا مین باب ہوگا اختلافا. اب اس میں اگر ہم کہتے ہیں یہ اہتدا جیسا ہے تو یہ اختلافا، تا ہی تو اس کی اہم ترین چیز ہے. اس میں تا کیوں نہیں ہے؟ وہ آپ نے بھیجا تھا نا کہ اگر ممکن موٹا ہو لفظ ہو تو وہ تے کو بدل دیتے ہیں موٹے لفظ سے. آج کیونکہ سواد کے بعد تا آنا تھا نا، ایسے اس نہیں، یہ والا یہاں پر ہی آئے گا. حمزۃ الوصل مٹا کے لکھ لیتے تاکہ صاف صاف سمجھ آ جائے. یہ استفا ایسے ہو جاتا. اب یہ دو ایک بہت مفخم، میرے منہ پہ چڑھ گیا. اچھا جی، پتلا موٹا کہتے ہیں، مفخم اور مرکب کہتے ہیں اس کو عربی میں. ٹھیک ہے، یہ سواد بہت موٹا لفظ ہے اور تا بالکل باریک سیدھا، زبان سیدھی کر کے. اب دونوں اکٹھے پڑھنے مشکل ہیں، تو اس صورت میں باب افتعال، باب تفعل اور باب تفاعل میں تھوڑی تھوڑی تبدیلیاں کر لی جاتی ہیں تا کی وجہ سے. اب کیا کیا گیا؟ اب اس کو بدل دیا گیا تو میں. ابھی ہم نے میرا خیال ہے کچھ پچھلے لیسن میں بھی کوئی اس طرح کا فیل پڑا تھا جس میں یہ اس کو تو میں ہی بدلا گیا تھا. عید تو رہا تھا شاید. اچھا جی، استفا، یستفی، استفی، مستفن. یہ جو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نام کے ساتھ لگاتے ہیں مصطفیٰ، تو یہ یہیں سے نکلا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. وہ اب ہم جب تنوین لگاتے ہیں تو مستفن، جیسے اب ہم استفا کو کریں تو المصطفیٰ. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح سے المصطفی. اب وہ جو مصطفیٰ ہے وہ کس جگہ پر آ رہا ہے؟ مصطفیٰ مفعول بن رہا مفعول ہے کی نا، جگہ پر، یعنی کہ جس کو چنا مفعول کی گیا. جگہ جس کو چن لیا گیا. الحمدللہ. اسی طرح سے محمد، جس کی تعریف کی گئی. ٹھیک ہو گیا. ہمیں پتا چلا کہ یہ جو مصطفیٰ کا لفظ ہے یہ اس ٹیبل سے نکلا اصطفیٰ. اب اصطفیٰ کا بھی وہاں پر ایک سٹارٹ سا کیا ہوا تھا کہ نیا لفظ ہے. اب ہم جب مصطفیٰ کہیں گے تو انشاءاللہ یہ ہمیں یاد رہ جائے گا. اب آپ مجھے بتائیں کہ اصطفیناہ اٹھا ہے یا پھر یہ استفا ہے اس کے بعد نہ ہے؟ اس کو ہم کس طرح سے ٹکڑے بنائیں؟ اس کے دو ٹکڑے ہوں گے، استفینا ہم نے چنا اور پھر ہوں اور اس کو چنا. ٹھیک ہو گیا. حمزۃ الوصل کو ہم نے، میری آواز آ رہی مجھے واپس. ٹھیک ہے، ہم نے کسرہ لگا دی. استفینا، استفا، استفو، اور اس کے بعد پھر استفیتا، استفیتو، استفیتم، استفینا. ہم نے بات کی تھی کہ فیل کے ساتھ ضمیر جڑ کے آئے تو وہ ہمیشہ کیا بن جاتی ہے؟ اس کا مفعول بھی. مفعول بھی. اور اس کا جو فاعل ہے وہ ڈھونڈنے میں ہم نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا، کیونکہ سوائے ہوا اور ہیا کے باقی سارے صیغوں کے اندر ان کے اپنے فاعل چھپے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہاں پر کون سا فاعل چھپا ہوا ہے؟ نحنو. نحنو. ہم کہیں گے نا چھپا ہوا ہے جو نحنو کو ریپریزینٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، نا ہم اس کو کہیں گے. جو ضمیر ہوتی ہے نا ڈیٹیچ والی، اٹیچ والی، سوری، تو اب ہم کہیں گے کہ نا اس کے اندر چھپا ہوا، کیونکہ یہ بھی ایک طرح سے اس کی ضمیر ہی بن رہی ہے نا. جو اس کا ہم نا، اس کو ہم علیحدہ علیحدہ کریں گے لیکن ابھی نہیں کریں گے، QC 6 میں کریں گے. تو استفینا
फेल फाइल मफूल बिही, एक छोटा सा जुमला सिस्टर मनी जी ने जैसे लिखा था जुमली, ठीक है, ये अपने अंदर एक जुमला बन गया। उसके बाद है फिर दुनिया। अब फिर दुनिया में भी देखें, ये जार मजरूर है लेकिन ये इसके नीचे जेर नहीं आएगी, ये ठीक है, पेपर में और भी ये है। दुनिया भी नहीं होता, ये इसके ऊपर पेश भी नहीं आती, हम्म, ये दुनिया 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 ही रहता है। अच्छा जी, अब ये 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 वाला जो जुमला है इसकी तरकीब कौन करेगा, कोई एक सिस्टर कर लें। इतनी खामोशी। ये इन्ना का जुमला है, ठीक है, इसमें इस्मु इन्ना हो जाएगा। इस्मु इन्ना, ठीक है, अब ये एक तो मरकब बन रहा है फिल लाहिराती, ये जार मजरूर वाला मरकब बन गया। ठीक है, और फिर ये ला ताकीद के लिए फिर मिन हो गया, फिर ये दोबारा मरकबे जारी है, मिनस सालिहीन, मिन और सालिहीन, दो दफा ये दो मरकबे जारी हैं। क्या इन दोनों को ही हम कहेंगे हबरू इन्ना एक और हबरू इन्ना दो? पूरी खबर अच्छा बन जी, जाएगी इन्ना की। अभी के लिए पूरी खबर बनाइए। थोड़ा ठीक। सा इसमें से जो हमने आगे सीखना है ना, अच्छा फिल आखिरा नहीं, फिल आखिरा को नहीं आप बीच में डाल लें, आप लामिनस से शुरू करें। इसकी जो मतलब इसके बाद वाली तरकीब है ना, वो आप उसको चले एक हिंट के तौर पे इस तरह से समझ लें, जैसे कुरान पाक की कुछ आयत में आपको ढूंढ के दूंगी, ठीक है, उसमें देखें, अब ये इन्ना वाला जुमला है ना, इसका आप तर्जमा देखें, और बेशक वो आखिरत में, ठीक है, बेशक वो आखिरत में, फिर दुनिया दुनिया में, और बेशक वो आखिरत में, ये इन्ना के इस्म के साथ ये वाला जो फिल आखिरा काम कर रहा है, ठीक है, इस्म है फिल आखिरा, ये इसका जो ताल्लुक बन रहा है ना वो इस्म के साथ बन रहा है। खबर क्या बन रही है, खबर ताकीद से शुरू हो रही है, अलबत्ता नेकों में से। तब हम क्या किया करेंगे, हम एक छोटी सी पहचान कर लेंगे, इस्लाम का एक नाम भी है, इसकी मजीद आपने पहचान भी करनी है, लेकिन अभी के लिए हम ये कर लेते हैं कि जहां आप इन्ना वाला जुमला देखें उसका इस्म बनाएं, उसके आगे आपको बहुत सारे जार मजरूर वगैरह नजर आ रहे हैं, उसके खबर के ऊपर आपको ताकीद वाला लाम नजर आ जाएगा, ठीक है, ये एक इसको निशानी को इस तरह याद रख लेगा, आपको पता चल जाया करेगा कि ये जो ल है ये ताकीद है, यहां से हमारी खबर शुरू हो रही है, ठीक है। और इस्लाम को वो उसमें भी नहीं, आपने जर की तरफ नहीं ले जाना कि कहीं ये जर ना हो, ये जर बिल्कुल भी नहीं है, ये ताकीद है। ये अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी, हर्फ के साथ कहाँ आपने ऊपर देख लिया वलाकद, और इसी तरह से यही लाम जब फेल मुदारे पे दाखिल होता है तो वहां ये क्या कर देता है, उसको मंसूब कर देता है, ठीक है। और जब ये देखें, अब यहाँ पर भी ये मिन के साथ आया है, अब मिन के साथ आया है लेकिन क्या हुआ है, इस ताकीद को मजीद हमने थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लिया कि ना वाले जुमले में आया है, तो अब ये इस्लाम से यहाँ खबर शुरू हो रही है, ठीक है। सवाली हीना, अब मैं आपसे अगर पूछूं सवाली हीना में से अलामत आपको क्या नजर आ रही है जर होने मजरूर होने की, या या नून, या या, नून। ठीक हो गया, कभी भी या नून नहीं कहना, नून गिर भी जाता है ना, कहीं अच्छा। कहीं हमने देखा है कि नून जो है गिर जाता है, तो वो अब जो रफा वाली हालत उसमें से भी नून गिर जाता है। अब इसको आप थोड़ा सा मजीद पहचान लें, मुरकबे इजाफी में हमने देखा कि जब हम मुरकबे इजाफी में मुस्लिमूना या मुस्लिमीना लगाएंगे, उसके आगे कुछ हम उसकी इजाफत करेंगे, जैसे मुसलमानों का घर, तो फिर मुस्लिमू कर लेंगे उसको, अगर हम पहले लेके आएंगे। थोड़ा सा मजीद इसकी ना मिसालें हम आपके साथ शेयर कर लेंगे ताकि ये मजीद अच्छी तरह समझ आ जाए कि फिर ये नून गिर जाया करते हैं, नून अस्मा से भी गिर जाते हैं, अफाल में से भी गिर जाते हैं, तो यहाँ हमने निशानी रख लेनी है कि वाव निशानी है रफा की हालत की, या निशानी है मंसूब होने की और मजरूर होने की, ठीक है क्या। मैं इसको मिटाती हूँ, अगर फिर आपको कोई चीज समझ नहीं आई तो फिर इसको दोबारा से देख लेते हैं। अच्छा जी, इसको अफीना का हमें मफूल बिही नजर आ गया था, फिर दुनिया जार मजरूर था, वाह इन्ना हु, ये सिस्टर ने बता दिया कि इन्ना का इस्म हु है, फिर आखिरती जार मजरूर, ला को तकीद के लिए निकाल के मिनस स्वालिहीन फिर एक दफा से जार मजरूर हो गया, ठीक हो गया जी। यहाँ तक अगर किसी को तरकीब के हवाले से समझ नहीं आई तो बताइएगा। अच्छा जी, ये कौन सी जोड़ी है, ये वाली
कौन सा लिखूं यहाँ पर मरकब मुरक्कब, ये इजाफी कौन सा मरकब? इजाफी इजाफी। मुरक्कब इजा, अल्हम्दुलिल्लाह। और इससे मुझे याद आ गया, जो आप सबकत का आपने पूछा था, मुझे रक्काबा युरक्किबु से याद आया। सबकत जो है ना, जैसे होता है मगफिरत, रहमत, ये मस्दर के तौर पे आता है। अच्छा ठीक। ठीक है क्या? आपने उसको फेल माजी की तरफ जोड़ा था, वो फेल माजी वाला नहीं वो होगा, बल्कि वो वो होगा देखने में मस्दर उसकी होगा। ता, वो बिल्कुल उसको हाँ अगर गोल ता बना दिया जाए तो वो फिर जहन में आ हाँ, जाता है। तो इसको लंबी जी ता दी वो तो उसी एकदम से गोलता उसका। को, जी बिल्कुल, उसी गोलता को हम कहेंगे कि ये मस्दर है, बिल्कुल कैसा जैसे हम्म। मगफिरत होती है उसी तरह का। अच्छा जी, मुख्तसर सी शरह देखेंगे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम में हमारे लिए एक ऐसा नमूना है जिसकी एतबा की जाए। अल्लाह ताला ने उन्हें मुंतखब करके उन्हें इस दुनिया में इमाम बनाया। इमाम और अमाम, ठीक है, इमाम और अमाम का फर्क हमने याद रखना। इमाम जिसकी इमामत की जाए, और अमामा कहते हैं आगे को। दुनिया की तकरीबन आधी आबादी, जिनमें यहूद नसारा और मुसलमान, यानी कि तीन बड़े ग्रुप, यहूद नसारा और मुसलमान शामिल हैं, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ना सिर्फ इज्जत और एहतराम करते हैं, बल्कि उन्हें अल्लाह के नबी के तौर पर भी कबूल करते हैं। और इसमें हमारे टीचर कहा करते हैं कि आधी से ज्यादा कहना चाहिए, कि बहुत ज्यादा लोग हैं जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नबी मानते हैं, अपना पेशवा मानते हैं, इमाम मानते हैं। कयामत के दिन उन्हें नेक लोगों के साथ उठाया जाएगा। सिर्फ बेवकूफ लोग ही ऐसे बेहतरीन शख्स की पैरवी करने से मुंह मोड़ते हैं। अच्छा जी, बहुत दिनों बाद हमने देखा अल्लिम। अल्लिम का क्या माना है? सिखाइए। सिखाइए, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जिसके बाद इज क़ाला लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाला अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। अच्छा जी, इज जो है, इज क्या करता है? इज मुदारे पे असर डालता है, माजी के साथ आ जाए तो कोई इसका नहीं होगा असर। ठीक है, हमने क्या बात की थी कि इजा जो है माजी के माना को मुदारे में ले जाता है, जबकि इज मुदारे के मानों को वापस माजी की तरफ ले आता है। लेकिन यहाँ पर इज है और इसके बाद हमें माजी ही नजर आ रहा है। ठीक है, कौला, कौला के साथ लहू की प्रेपोजिशन यूज हुआ करती है। इज के पीछे हमने कहा था उज़कुर होता है। उज़कुर, याद कर। इज कौला, जब कौला कहा, जब कहा उसको, लहू उसको, ठीक है, उसको लहू, ये हमारा जार मजरूर हो गया। रब्बुहु, उसके रब ने। अच्छा जी, रब ने कहा, कौला रब्बु, कौला रब्बु। अब ये सीधा सीधा हो गया ना, हमें पता चल गया कि ये जो रब्बू है ये कौला के लिए फाइल बन गया। ठीक हो गया। और रब्बू के बाद हु, ये कौन सी जोड़ी बन गई? इजाफी। ये मुरक्कब इजाफी हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, यहां तक हमारा एक जुमला कंप्लीट हुआ। इसके बाद अस्लिम, अस्लिम कौन सा सीगा है? अमर। फेले अमर। और अब हम क्या कहेंगे, इसमें फाइल क्या है? इस्लाम तो, उसका कौन अंता। इसमें अच्छा, इसमें बिल्कुल सोचना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने बात की थी कि इसमें एक तू छुपा हुआ है या तुम छुपा हुआ है। कहाँ से बात शुरू की थी? जब हमने QC1 में फेले अमर बनाना सीखा था, तो वो असल में हम उसका फाइल ही बताते थे। ठीक है, वो सादा सादा अल्फाज में बताते थे, बस उसको फौरन पक्का याद कर लिया करें कि कहा था इफ अल तू कर, इफ अलू तुम सब करो, तो अस्लिम तू सर झुका दे। तो अब ये जो अंता है ये फेले अमर का फाइल हमें मिल गया। इसके बाद इसका कोई मफूले बिही नहीं है। एक छोटा सा जुमला यहाँ कंप्लीट हुआ। इसके बाद है कौला, उसने कहा। अब ये कौला किसने कहा? ये तो अल्लाह ताला फरमा रहे थे, ये किसने कहा? हजरत इब्राहीम ने। इब्राहिम। हजरत इब्राहीम ने। अय्यू इब्राहीम, ये कहा है इब्राहीम ने। ठीक है, असलम तू, असलमा का टेबल है। अब उसने क्या कहा? असलम तू। अच्छा, मैं अगर अपने लेफ्ट हैंड से कहूँ फिर मैं क्या कहूंगी? असलमत। मैं सर झुकाती हूँ। अगर लेफ्ट तो से इसके लिए बोलूँ मैं सीगा कौन सा? असलम तो ही होगा, अरबी सीगा में यही होगा। रहेगा असलम सर। तो ही होगा, असलम तो ही होगा। और अगर हम ट्विंस हुई तो फिर हम क्या कहेंगे?
तो भी यही असलम तो नहीं फिर हम असलम ना, ये रहेगा। असलम ना ज्यादा हो गई तो ना, असलम ना। हाँ तो ना यानी कि हाँ अगर अगर मेरे साथ कोई है उसने भी मैं ही कहना है तो हम दोनों ने असलम तू ही कहना है। लेकिन अब यहाँ पर जो ज्यादा नाहनु है, एक से ज्यादा हो गए हैं, तो उसका मतलब उन्होंने अब ना कहना, असलम ना कहना है। ठीक है, असलम तू मैंने सर झुका दिया, मैंने फर्मा बरदारी कर दी, ली रब, पहले इसको देखें फिर इसके बाद रब्बी, इसने क्या कर दिया, रब्बी को इसमें जलाला इसको किया है मजरूर, ली मजरूर। रब्बी। ठीक है, अब ये दोनों क्या हो गई हैं, पहली वाली हमारी जोड़ी बन गई है ली रब्बी मुरकबे जार जारी मजरूर। और ठीक है, दूसरी तानी मुदाफुन मुदाफल है। ये है मुदाफुन और मुदाफुन इले, और इसको क्या क्या हम कहते हैं, इजाफत की जोड़ी, ताल्लुक की जोड़ी। इस जोड़ी को भी सही कर दे, और कोई नाम तो नहीं है इसका, मुरक्कब मुरक्कब इजाफी। इजाफी, मुरक्कब इजाफी। और ये नाम ग्रामर की किताबों में आपको नजर आया करेगा। ठीक है, अब आलमीन में से अगर मैं पूछूं क्या अलामत है, तो इसमें भी या या जो है ये मजरूर होने की अलामत है। ठीक हो गया। अच्छा जी, कौला असलम, तो उसने कहा मैंने सर झुका दिया, ली रब्बी रब्बिल आलमीन जोड़ी हो गई, रब्बुहु जोड़ी हो गई, लाहू जोड़ी हो गई, और बाकी ये हमारे जुमले यहाँ तक हो गए कंप्लीट। कौला क्या बन गया, कौला के बाद उसका पूरा एक मकूलुल कौल, एक कौल आ जाता है, वो क्या होगा, कौला के लिए असलम तो लिए रब्बिल आलमीन, ये उसका पूरा का पूरा मकूला हो जाएगा। ऊपर जब ताला देखें तो वहां पर कौला वो उस फेल का, वो उस जुमले का हिस्सा ही था, तो वहां पर उसका हमें फाइल भी मिल गया, और उसके बाद हमें उसका मकुले भी नहीं मिला था, इसका हमें सिर्फ सिला मिला था, लहू वाला। ठीक है, मकुले भी ऊपर भी नहीं था। अच्छा जी, इसको हम करते हैं इधर से क्लियर। और अगर आपका कोई इधर क्वेश्चन है, कुछ किसी चीज की समझ ना आई हो, या मैंने ज्यादा जल्दी बता दिया हो, थोड़ा सा उसमें दोबारा रोशनी डालने की जरूरत हो, तो जरूर पूछ लीजिए। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी। अच्छा, ठीक हो गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सबसे अहम सिफ्त क्या थी, उन्होंने अपने रब की पूरी पूरी फर्माबरदारी की, जैसे मैं कहते हैं इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। उनका दिल अल्लाह की अजमत से भरा हुआ था। रब यानी वो जो हमारा ख्याल रखता है, हमारी जरूरतों को पूरा करता है और जिंदगी गुजारने में हमारी मदद करता है। हम किसी वन में भी इसका कहते हैं ना, इलाहा किसको कहते हैं, जो मोहब्बत से हमारी जरूरतों का ख्याल रखते हैं, हमें पालता है। और देखें कि करोड़ों करोड़ों से भी ज्यादा कितनी आबादियां, और फिर हर तरह की मखलूक, जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम नहीं देख सकते, हर एक की हर जरूरत को पूरा करने वाला रब है। रब के अलावा इबादत का लायक और कौन हो सकता है, ये हमसे सवाल है। अल्लाह ताला हम सबको दीन इस्लाम पर कायम रखे और दीन इस्लाम पर ही हमारा खात्मा हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सफर का आगाज दर हकीकत कायनात में, सितारों में, चांद और सूरज में गौर व फिक्र करने से हुआ था। अ, ये ना पूरी एक तर्जुमा आयात वगैरह हमने पढ़ी थी, इसमें इन्होंने सोचा कि मैं समझता हूँ कि ये सितारे ये मेरे खुदा है ना, लेकिन जब दिन का टाइम आया तो सितारे गायब हो गए, चांद गायब हो गया, और जब सूरज को कहा कि हो सकता है ये मेरा रब हो, जब रात हो गई तो फिर सूरज भी खत्म हो गया कि ये मेरा रब कैसे हो सकता है। यानी कि उन्होंने ढूंढा, कोशिश की कि मेरा रब कौन हो सकता है, ये जो जिनको फना है, जो वो खुद कायम नहीं रह सकते, वो मेरे खुदा कैसे हो सकते हैं। फिर आखिरकार उन्होंने ऐलान कर दिया कि अल्लाह ही उनका रब है, और ये कि वो खुद को अल्लाह के सुपुर्द करते हैं। और ये एक बहुत ही मुश्किल तरीन फैसला, और फैसले पर कायम रहना, कि उनके जो थे बाप थे, खानदान वाले सब उनके खिलाफ थे, फिर भी वो प्यार से बात करते, या अबती कहकर वो बात किया करते थे। अल्लाह ताला हम सब के लिए बहुत आसानियां करे, कि जो अगर जिंदगी में जैसे छोटी छोटी मुश्किलात आती हैं, तो हमें चाहिए कि हम इन लोगों की तरफ देखें जो अल्लाह ताला के मुकर्रब बंदे थे,
जिन्होंने अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी की, जिन्हें अल्लाह ताला ने चुना हुआ है, जिनको यकीन भी है कि अल्लाह ही हमें इंशाअल्लाह मुआफ फरमाने वाला है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सफर का आगाज ये हम पढ़ चुके हैं। सच्चे मुसलमानों में भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह इस सिर्फ होनी चाहिए कि अल्लाह ऐसे ही लोगों को मुंतखब फरमाएगा और उन्हें इस दुनिया में कायद और इमाम बनाएगा। सबसे अहम ये कि आखिरत में उन्हें कामयाबी से नवाजा जाएगा। और इस मौका पर हमने अपने लिए भी दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमें आखिरत की भी कामयाबियां और कामरानियां नसीब फरमाए। गहरे तसव्वुर और एहसास के बाद हम देखते हैं, हम तदब्बर और तजक्कुर करते हैं इस आयात पर कि बाज लोग जब देखते हैं कि अल्लाह के अहकाम उनकी ख्वाहिशों के खिलाफ जा रहे हैं, तो वो अल्लाह के अहकाम को नजरअंदाज कर देते हैं। और ये सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? खुशियों के मौकों पर। वो अपने गलत कामों को सही करार देने के लिए रास्ते तलाश करते हैं। इस तरह वो खुद अपने आप को भी बेवकूफ बनाते हैं। इस यहाँ पर ना, इस मौका पर हमारे टीचर एक शेर पढ़ा करते हैं कि मैं आपको सियाको सबाक सा बता देती हूँ कि मैं आदम की औलाद हूँ और आदम अल्लाह के पैगंबर हैं। तो इसका मतलब है कि वो जन्नत में जाएंगे तो उनकी औलाद भी तो जन्नत में ही जाएगी। जिस तरह से आज हम इस खुशफहमी में मुब्तला है कि हम उम्मत मोहम्मदिया में से हैं, तो हम बख्शे बख्शाए हैं। हमें बिल्कुल साफ और वाज़ेह मिसालें और रोल मॉडल दिए गए। इसके बावजूद भी अगर कोई अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करना चाहता है तो सख्त अजाब ऐसे लोगों का इंतजार कर रहा है। अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए। एक मुसलमान होने के नाते हम ये दावा करते हैं कि हम अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर रहे हैं। क्या हम खुशी से अल्लाह ताला के तमाम अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हैं? मसलन सर्दियों में फजर की नमाज पढ़ना, और अब तो गर्मियों में भी एसी वाले कमरे से उठ के निकल के नमाज पढ़ना, जहाँ रातें भी छोटी हो जाती हैं। रमजान का पूरा महीना रोजे रखना, ज़कात और सदकात देना, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करना, दीन की दावत देना वगैरह वगैरह। और ये सारे काम अपनी जात से जुड़े जुड़े हुए ना। ये थोड़ा सा इससे आगे बढ़ के देखे, सिलाई रहमी सबसे मुश्किल तरीन काम, जो ताल्लुक तोड़ रहा है उससे ताल्लुक जोड़ना। अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं कहा करते थे। अच्छा जी, इसका तर्जुमा भी देखते हैं और साथ साथ हम इसको थोड़ा थोड़ा सा मिलाएंगे भी। पहले हम पूरा इसको ऐसे पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा लका अस्लमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व इलैका अनबतु व बिका ख़ासमतु अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका बिइज़्ज़तिका ला इलाहा इल्ला अंता अन तुदिल्लनी अंतल हय्युल लज़ी ला यमूतु वल जिन्नु वल इंसु यमूतूना। ए अल्लाह मैं तेरा फर्मा बरदार हो गया। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, लका तेरे लिए ही। ठीक है, अस्लमा के टेबल के साथ भी हमें ला नजर आ गया कि मैं तेरे लिए ही फर्मा बरदार हो गया, मैं तेरा फर्मा बरदार हो गया। व बिका आमनतु, और तुझ पर ही ईमान लाया। व अलैका तवक्कलतु, और तुझ पर ही मैंने भरोसा किया। अब यहाँ पर एक चीज आपको ये भी पता चल रही है कि जो जार मजरूर है वो पहले आ रहा है। ये एक छोटी सी चीज मैं यहाँ पर बताना चाह रही थी, यानी कि ये जो जार मजरूर ये पहले आ गया और फेल हमारा बाद में आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो है ना, तेरी ही तरफ, तुझ पर ही, इसको ज्यादा ताकीदन बयान किया गया। और जिसकी ताकीद पहले ज्यादा करनी है उसको पहले ले आते हैं। ठीक है, यही होता तवक्कल तू अलैका, मैंने भरोसा किया तुझ पर। इसमें फिर वो ताकीद कम हो जाती है। और तुझ पर ही मैंने भरोसा किया। व इलैका अनबतु, ठीक है, और मैंने तेरी ही तरफ रुजू किया। व बिका खासमतु, और तेरी ही मदद से मैं मुखालिफों से लड़ा। खासमा यखसमु। अच्छा जी, ये जो है ना, हम एक पंजाबी लफ्ज यूज करते हैं ना, हम तो नहीं खैर यूज करते, हमारे बड़े कहते हैं, जैसे खसम जिसको कहते हैं, तो वो भी ये खसम, ये खासमा से ही निकला था लफ्ज, झगड़ा करने वाला। वो लफ्ज अरबी के खराब होते होते कहाँ तक पहुंचते हैं कि हम सोचते ही रह जाते, अच्छा ये अल्फाज इस तरह से थे और ये खराब होते कहाँ तक। तो वो झगड़ालू तबीयत वाले को कहते हैं। तो अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका, है अल्लाह बेशक में, हमारा इन्ना वाला जुमला भी आ गया। नून जो यहाँ पर या है, ये हमारे पास इस्मु इन्ना आ गया। आगे हमारे पास आऊजू, यानी कि आऊजू, ये हमारे पास फेलिया जुमला इस इन्ना वाले जुमले की खबर बन जाएगी। बी इज्जती का, मैं तेरी इज्जत की पनाह मांगता हूँ। ला इलाहा, अच्छा जी, ये जो है ना ला इलाहा,
इसके बारे में भी हम QC6 में इंशाल्लाह डिटेल के साथ पढ़ेंगे। इन चीजों का फिर बड़ा मजा आने लग जाता है, ये सब कुछ हम सीख लें, फिर हम छोटी छोटी मजीद चीजें इसमें शामिल करते जाएंगे, फिर उनको सीखना आसान होता जाएगा कि कोई बरहक माबूद नहीं, बल्कि हमने QC5 में ही पढ़ लेना है इंशाल्लाह। ये मुझे याद आ गया बैठे बैठे, QC6 में ही इसके बारे में हमने पढ़ना, ला इलाहा के बारे में। अच्छा जी, अंता तू ही अंतु दिल्लनी के इस बात से कि तू भटका दे मुझे, यानी कि कोई इतनी हिम्मत या ताकत रखता ही नहीं कि अल्लाह ताला के सिवा कोई भटका सके। अंतल हय्युल्लाजी, अच्छा जी, तू वो जिंदा है, ला यमूतु, जो कभी नहीं मरता, वल जिन्नु वल इंसु यमूतुना, जबकि अच्छा जी मरते हैं, ठीक है। वल जिन्नु वल इंसु, यानी कि जिन और इंसान, यमूतुना वो सब के सब मरते हैं। अब ये जो चीज है ना, इसको भी समझ ले कि यहाँ पर जिन और इंस ये दो हो गए, दो से मुराद मतलब इनकी पूरी पूरी जिन्स आ गई ना। अब ये यहाँ पर चूंकि जमा वाला माना दे रहे थे, अब हमारे पास ये बन गया है, इसको समझ ले मुबतदा। अब इसकी ये जो खबर है ना, इस वजह से हमारे पास जो हमारा फेल था वो जमा वाला आ गया। यही अगर आ जाता यमूतु वल जिन्नु वल इंसु, उसके बाद पूरी कायनात की चीजें भी आ जाती ना, तो हमारे पास यमूतु ये फेल वाहिद ही रहना था, क्योंकि वो इस तरह से आ जाना था कि जो पहला वाला इस्म होता वो वहां पर उसका फाइल बन जाता, बाकी फिर सारे के सारे अतफ हो जाते। ठीक हो गया जी। इसमें से कुछ ना समझ आया तो ग्रुप में पूछिएगा, ये मैंने आपको अलहदा से काम, अगर आपको लगे कि इसमें हमारा टाइम वेस्ट होता है तो फिर नेक्स्ट टाइम इसको हम स्किप कर दिया करेंगे। ठीक हो गया जी, ये सवालात हम छोड़ देते हैं, हम देखते हैं अपने दुआ असबाब की जो प्लान वगैरह है। अल्लाह मुझे अपना शुक्रगुजार और फरमा बरदार बंदा बना। हमारा प्लान क्या होना चाहिए? इंशाअल्लाह मैं कायनात के रब की अजमत को समझने के लिए जमीनों आसमान की तख्लीक में गौर व फिक्र करूंगा इंशाअल्लाह। अच्छा जी, मिल्लत और हम इसको मिल्लतुन मिलालुन इस तरह का कुछ और हमने पढ़ा हुआ है, मिलालुन, या इसी को शायद हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। ये चलिए हमने कोई पहले पढ़ा ये पहले पढ़ा हुआ मिल्लत है। इब्राहीमा, पढ़ा पहले था पढ़ा पहले। हुआ है। ठीक ठीक है। नफ्स, अनफुस और एक और जमा भी होती है, नफूस। नफूस, नफूस। अच्छा, नफूस होता है कि नूफूस होता है? नून पे जबर है, नूफूस, ठीक हो गया। नफूस। जैसे कुलूब, ठीक है, कुलूब फूल का वजन। अच्छा जी, आलम और आलमीन, एक आलिम भी होता है, अगर आलिम होगा तो आलिम होगा। अच्छा जी, अब हमारे आ गए हैं फतह नसरा दरबा सामिया, जैसे रागिबा यरगबू, इरगब रागिबुन मरगूब। मरगूब क्या होता है भला? मरगूब, मरगूब गजाएं, जिनको दिल चाहता है, जिनको मांगता है, ठीक है, पसंदीदा। मरगूब। और इसके बाद रागाबुन। और ये देखिए यहाँ पर भी छोटा सा साथ लिख दिया, अन के साथ हो तो मुंह मोड़ना, और यहाँ पर अन के साथ आया तो मुंह मोड़ने वाली बात। अच्छा जी, साफिहा यस्फाहु, इसका साफिहुन मसफूहुन और सफाहतुन। अच्छा जी, उसके बाद है स्वालहा यस्लाहु, इस्लाह वालिह डैश और फलाहुन, वो नेक हुआ, इसलिए यहाँ पर हमें इसके मफूल की जरूरत नहीं। फिर क़ाला यक़ूलु कुल क़ाइल मक़ूल क़ौल। इस्तफा यस्तफी, इस्तफी मुस्तफिन मुस्तफन इस्तिफाउन। अच्छा जी, अस्लमा युस्लिमु, अस्लिम मुस्लिम मुस्लिम और इस्लाम, ये हमें पक्के पक्के याद हुए हमें, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम शुरू करें बी पार्ट इसका। सिस्टर अजान हो गई है। चलिए ठीक है, हम इसको करते हैं, हम 15 मिनट की ब्रेक लेते हैं, ठीक हो गया? जी ठीक। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली।
इसके साथ एक छोटी सी दुआ ये भी पढ़ लिया करें, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन, के जो हम पढ़ रहे हैं अल्लाह इसे हमारे लिए आसान बना और इसमें हमारे लिए कोई मुश्किल ना आए और हम तुझ ही से मदद मांग रहे हैं। ठीक हो गया जी। हमारा कोर्स 5 है, चौथी जोड़ी जमा के साथ पढ़नी है और हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी इसकी प्रैक्टिस कर ली। क्या अब ऐसे लग रहा था, मुझे स्लाइड्स को देख के भी लग रहा था कि जैसे ये सारा कुछ आप कर चुके हैं और बहुत अब आपके लिए ये एक हलवा सा ही है। तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इसको मजीद देख लेंगे कि ये जो जोड़ियां कुछ हम देख लेते हैं इसमें तस्निया के साथ देख लेंगे और इसी तरह जमा के साथ। तो ये जो नून वगैरह का गिरना उसे हम यहाँ पर देख लेंगे। अच्छा जी, पिछले सबक में हमने चौथी जोड़ी जो ताल्लुक बता रही थी जमायर के साथ, उसमें तो अब किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं रही ना कि जमायर के साथ जब कोई इस्म आ जाए तो अब हमने यही देखना है कि दोनों अस्मा है और पहला वाला अल और तनवीन के बगैर है, जबकि दूसरा जो हमारे पास हिस्सा है मुदाफ इले वाला, उसके ऊपर जेर वाली तब्दीली हमें नजर नहीं आएगी, लेकिन चूंकि हमें पूरा पूरा उसमें ताल्लुक समझ आ रहा है, जैसे कि उसी वन में हमने बहुत सारे टेबल किए थे, रब्बुहु दीनुहु कलमुहु, तो वो ये सारे के सारे हम मुरक्कबे इजाफी ही पढ़ते आए हैं। अच्छा जी, मुदाफ हमारा असली हालत यानी कि रफा की हालत में भी हो सकता है, मंसूब असर पढ़ने की सूरत में ये हमारे पास मंसूब, और अगर हमारे मुदाफ के पीछे कोई भी एक हरफ जर आ गया तो हम इसे मजरूर हालत में भी देखेंगे, लेकिन जो दूसरा इसम है वो हमेशा 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 हमें मजरूर ही पढ़ना है उसको। अब वो रस्मुल खत में कह लें या लिखने में हमें मजरूर ना भी नजर आए या देखने में ना भी वो मजरूर लगे, उसको हमने कहना यही है कि ये मजरूर हुआ हुआ है, क्योंकि जो जो जमायर है ये मबनी है, इन पर कोई असर नहीं होता किसी भी तरह की कोई तब्दीली का। तो ये जो बैती ही की तब्दीली भी है, ये इसकी वजह ना तो हरफ जर है, ना इसकी वजह मुदाफ इले होना है, बल्कि इसकी वजह ये है कि ये जेर के साथ आसानी से पढ़ा जाता है। तो या और जेर अगर इस हा से पहले आ जाएं, इस हा को एक और नाम देते ना, हाय अद्वामीर, यानी कि मुजक्कर वाली जमीर, गायब वाली जमीर, इसे हम जब देखेंगे कि इस जमीर से पीछे जेर वाला कोई इसम आ गया है या वाला है, तो तब ये हमें ही की सूरत में नजर आएगा। हमने देखा हाजा बैतू, ये घर है, हु उसका भी, ये जो हु है ना ये मजरूर ही है, इस पे हमने कल काफी बात की थी और ये अब अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को समझ भी आ गई है कि हम इसको किस तरह देखा करते हैं। दखला जैदुन, जैद दाखिल हुआ, बैताहु उसके घर में। अच्छा जी, इसकी एक पहचान उस टाइम भी मेरे जहन में आ गया था कि सिस्टर मनीजे क्या पूछना चाह रही हैं। जब इस तरह की कंफ्यूजन हो तो आप इसके फेल से पहुंच सकते हैं कि ये जो हु की जमीर है ये कहाँ जा रही है। इस जमीर ने कहीं ना कहीं तो लौटना ही है ना, तो ये यहाँ लौट रही है। जैद को फिलहाल थोड़ी सी देर के लिए भूल जाएं, ठीक है। दौखला का मतलब क्या होगा, वो दाखिल हुआ, ठीक हो गया। अब ये जो वो है, वो के लिए हम उसकी ही जमीर लाते हैं ना। अब की जैसे हम कहें, अगर मैं कहूंगी ये मेरा पेन है तो फिर मैं इसमें कौलामी ले आऊंगी, ठीक है। अब मैं कहूंगी मैंने देखा अपने पेन को, और तो कौलामी, मैंने देखा अपने पेन को, या मैं कहूँ कि दखल तो मैं दाखिल हुई, बैतू, अब इसमें बैतू हूँ अगर मैं कहूंगी तो मैं दाखिल हुई उसके घर में। जब अपने घर की बात करनी है तो फिर अपनी वाली जमीर आ जानी। तो ये जो जमीर है ये हमारे फेल के साथ 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 साथ, जैसे अगर इसको मजीद आसान में कर दूं तो फाला के साथ हु आ जाएगा, ये अब उसकी अपनी चीज हो जाएगी, ठीक है। जैसे बैता हु उसका घर, वो उसने किया उसे। अब ये जो इसको अगर हम बैता वाला ही कर लें तो ज्यादा मेरा ख्याल है आसान हो जाएगा। हम कर लेते हैं
दखला बैता हु, वो दाखिल हुआ उसके घर में, दखलू बैता, अब क्या लगाना चाहिए मुझे? हम हम। ठीक है, अब इसी तरह से ये सारा हो जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होती है वो उस जगह पर होती है जब हम किसी को पुकारने वाला लेके आते हैं ना, उसमें हमें नजर नहीं आ रहा होता। अब जैसे मैं कहूं कि रअयतु आ रईता या रईती, क्या तुमने देखा? कलमू का या की, अब ये जो था कलमू का या की आसान हो गया कि रायता के साथ। यही अगर मैं यहाँ पर किसी का नाम लिख दूं, या मूसा लिख दूं, या मैं लिख दूं या फातिमा, अब इसके बाद जब मैंने यही वाली चीज लानी होगी ना, फिर उसमें हम कहाँ गलती कर जाते हैं, हम ये ता वाले को भूल जाते हैं कि ये नाम लिखा हुआ है। या जैसे हम किसी को पुकारे अब्बू को, अम्मी को, तो उसमें आपने क्या समझना है कि अब हम जो बात कर रहे हैं ना, डायलॉग सामने वाले से कर रहे हैं। अब जब सामने वाले की बात है तो उसमें वही वाला सीगा ता वाला ही आ जाएगा, यानी कि दखलता आ जाएगा, तो अब ये बात जो होगी उसकी तरफ ही लौट जाएगी। अगर यहाँ पर दखलता है तो हम कावला ले आएंगे, दखल तू होगा तो या वाली प्रपोजिशन, वो जो जमायर आ जाएंगे। और इसी तरह से अगर अपनी बात होगी, अपनी बात का हमने कर लिया, ज्यादा लोगों की होगी तो कुम आ जाएगा। इसकी एक मिसाल कुरान पाक में बार बार आती है। अच्छा जी, ये अनफुसुहुम, ठीक हो गया, ये उनके अपने नफ्स हैं। आज भी रखा था हमारे अपने इसमें, आज की स्लाइड्स में भी आया था कि नफ्साहू। अब ये जो नफ्स था, ये किसकी तरफ लौट रहा था? हुआ ये उसकी तरफ। साफीहा में जो था ना, साफीहा के अंदर जो हुआ छुपा हुआ था। अब ये हुआ इसने ही अपने नफ्स को किया ना, इसने नफ्सू का आपके नफ्स को तो नहीं किया, बेवकूफ बनाया। या मैं ये तो नहीं कह सकती साफीहा नफसी, उसने बेवकूफ बनाया मेरे नफ्स को। ठीक है, ना ही इसमें ना आ सकता है। अगर इसकी कॉन्सेप्ट की भी समझ नहीं आ रही ना, तो ये साफीहा के साथ आका आप आगे ये सारे नफसाहू नफसाहुम सारा कुछ लगा के इसका तर्जमा बना बना के देखिए, सारा समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। इसके बाद है जैतुन फी बैती। अब बैती और ही दोनों मजरूर है। बाकी वो जो या मूसा वगैरह या फातिमा वाली, ये वाली आपको मैं मिसाल एक दो अपने दुरूस में से निकाल के भेजूंगी। उसमें ना मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि हम भी कंफ्यूज होते हैं। आप ये ना समझे कि आपको ये सारा कुछ मुश्किल लग रहा है तो शायद ये हमें सिर्फ मुश्किल लग रहा है, सबको इसी तरह से मुश्किल लगता है। क्यों? क्योंकि अरबी हमारी अपनी जुबान नहीं है ना। अब उर्दू में, या जैसे जो लोग बहुत बेहतरीन इंग्लिश बोलने वाले हैं, जैसे सिस्टर मनीजा हैं, सिस्टर साहब बहुत सारी सिस्टर्स होंगी, और सिस्टर आसिया जैसे मुझे लगता है कि जर्मन में वो माहिर होंगी। क्यों सिस्टर आसिया? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप उसमें गलती नहीं करेंगी, ठीक है ना। तो ये जो क्योंकि अरबी हमारी अपनी जुबान नहीं है, हमें सोच सोच के लफ्ज लाने पड़ते हैं। तो हम इसी तरह से सीखते हैं, थोड़ा सीखते हैं, थोड़ा भूलते हैं, फिर दोबारा से सीखते हैं, फिर भूलते हैं, फिर सिलसिला चलता ही रहता है। बैतुल्लाही किताबुल मुस्लिमी किताबुल मुस्लिमीना। अच्छा जी, ये जो है ना, याद रखने वाले दो चार पॉइंट अपने पास लिख लें कि जो मुदाफ है ये तीनों हालतों में आ सकता है, रफा नसब जर। दूसरा पॉइंट लिखे, मुदाफ पर कभी भी अल और तनवीन नहीं आएंगे। तीसरा पॉइंट लिखे, मुदाफ हमेशा मजरूर होगा, चाहे वो जाहिरी तौर पर नजर आए या ना नजर आए। उसके बाद एक पॉइंट लिखे कि चूंकि मुदाफ में ना अल आएगा ना तनवीन आएगी, तनवीन से हम डिसाइड करते हैं जब उसकी हम जमा बनाते हैं वाव नून वाली बनाएंगे या जा नून वाली। इसी तरह से तस्निया में हम मैनी या हम मानी करते हैं, मुस्लिमानी मुस्लिमैनी, तो तस्निया का नून भी गिरेगा। उसके बाद वाला जो हर्फ है वो हर सूरत में तब भी मजरूर रहेगा, सिर्फ नून गिर जाएगा।
ठीक हो गया। इसकी थोड़ी सी मिसालें मैं आपको इधर लिख के बता दूंगी। और जो मुरक्कबे इदाफी है, इसका तर्जुमा ऑपोजिट में आएगा, मुखालिफ सिमत में, यानी कि पहले हम मुदाफ इलैह का तर्जुमा करेंगे, फिर मुदाफ का तर्जुमा करेंगे। कुछ सिस्टर ने कुछ लिखा है चैट में। हाँ ठीक है, चलिए मैं लिख के भी ये आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो इसको अभी फिलहाल सुन लें जो जो चीजें मैं बता रही। और इसमें का की के वाला तर्जुमा आएगा। और इसमें एक और चीज जो मैं बताना चाह रही हूँ वो ये है कि कहीं कहीं आप नाम पढ़ा करेंगे, हम इतना ज्यादा यूज नहीं करते, लेकिन ये कुरान सॉरी ग्रामर की किताबों वाले ये अल्फाज कभी कभार यूज कर लेते हैं, जिन्हें हम आसान लफ्जों में, मैं और हफ्सा तो हम यही कहते हैं, बाकी भी लोग जिस चीज को जो समझ आते, हम कह देते हैं दो मुरक्कबे इजाफी की जोड़ियां। कैसे? अब ये जो यौम है ना, इसने मुदाफ इले भी बनना है, फिर मुदाफ बन जाना है। किस चीज का? मालिकी यौमिद्दीनी। ठीक है, मालिकी यौमिद्दीनी, मालिक है किसका? बदले के दिन का। मैं जिसमें हम कहते हैं ना, हम बदले के दिन के मालिक की क्या करते हैं? मदद मांगते हैं, उसकी इबादत करते हैं, उसके पनाह में आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी हुआ करेगा। अब ये जो दरमियान वाला आपका इस्म है, इस पर आपने जहां जहां ये उस पर भी गौर करना है कि इसको भी अल और तनवीन नहीं देनी। या आपको इस तरह से कोई एक आयत नजर आ रही, कोई दुआ नजर आ रही है, आप देख रहे हैं कि पहले वाले जो दो अस्माएं दोनों पे अल और तनवीन नहीं है, फिर तीसरे पे गौर करें। तीसरा फिर यकीनन जेर के साथ आपको नजर आ जाएगा, या वो जान उनके साथ नजर आ जाएगा, तो हमें वहां से पता चल जाया करेगा कि ये एक ही लफ्ज जो दरमियान वाला है, ये पहले वाले के लिए मुदाफ इलैह है और दूसरे वाले के लिए मुदाफुन इलैह बन रहा है। ठीक हो गया? ये इतना देखने में शायद अभी थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा हो, लेकिन ये कुरान पाक में आपको इतना ज्यादा मिलेगा, इतना ज्यादा नजर आएगा कि कम से कम मुरक्कबे इजाफी आपका बिल्कुल पक्का हो जाता है, उसमें आपको फिर कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं रहती। जी एक मिनट मेरा बेटा, मैं जरा दरवाजा खोल के आई। अच्छा जी, मुसलमानों की किताब, किताबुल मुस्लिमीना। अब मैं थोड़ी सी मिसालें वो वाली भी निकालूंगी जहां पर आपको ये मुसलमान का लफ्ज पहले मिल जाए। अच्छा जी, अब आगे मजीद देख लेते हैं। अच्छा, ये वही बात ही है, चले रिपीट इसको कर लेते हैं। किताबुल मुस्लिमीना, किताबल मुस्लिमीना, किताबिल मुस्लिमीना। ठीक हो गया? ये अब तीनों हालतें जो पहली हैं, क्यों है? किताब फाइल भी हो सकता है, काना का इसम भी हो सकता है, इसलिए ये आपको रफा की हालत में नजर आ जाएगा। किताबा मफूले बिही हो सकता है, इसके साथ साथ इन्ना का इसम हो सकता है, और किताबी के पीछे या तो कोई मुरक्कबे जारी या फिर कोई मुदाफ भी हो सकता है। अच्छा जी, हाजा किताबुल मुस्लिमीना, हाजा किताबु, इतना अगर देखा जाए तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? मुब्तदा और उसकी खबर। ये जुमला। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जी। अब हम कहेंगे कि ये खबर है प्लस क्या है? मुदाफ है। ठीक है,
जैसे वो होता है ना कुछ वो मामू भी होते हैं और फूफा भी होते हैं, पट्टा सट्टा करने में ऐसे ही होता है ना। अच्छा जी, अब है किताबुल, यानी कि एक ही इंसान है, उसके ये वाले दो रोल हमें सामने सामने नजर आ जाते हैं। किताबुल मुस्लिमीना, अब ये जो खबर है इसका मुदाफ इले हमारे पास क्या आ गया है, मुस्लिमीना। या ने हमें बता दिया कि ये हमारे पास मजरूर है। अच्छा जी, करअतु, मैंने पढ़ी। अच्छा, अब इसमें अगर आपने का तर्जुमा लाना है ना मफूले बिही के लिए, मैंने पढ़ा किताब को, इस तरह के तर्जुमे अपनी सिर्फ आसानी के लिए होते हैं। अब ये यहाँ पर मफूले बिही बना था, अब इस मफूले बिही के साथ साथ ये प्लस बन गया मुदाफ, और इस मुदाफ का मुदाफुन इले बन गया है मुस्लिमीना। इसके बाद है कतब, कतब तो दोबारा से फिर एक ये भी फेलिया जुमला, ये भी फेलिया जुमला। इस फेलिया जुमले को जाहरी तौर पर मफूले बिही की जरूरत नहीं पड़ी। अब ये मिन किताबी मुरक्कबे जारी, अब मुरक्कबे जारी तो है ही, अब ये मुरक्कबे जारी का मजरूर इसम प्लस मुदाफ, और ये अल मुस्लिमीना इस मुदाफ के लिए मुदाफुन इले बन गया। ठीक हो गया। इस तरह से आप अपने भी बुक्स पर फूल बूटे बना लिया करें। इंशाल्लाह जब आप QC5 करवाएंगे आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे। अच्छा, अगर थोड़ा सा ढूंढ लें यहाँ से। अच्छा जी, जमा के साथ ताल्लुक की जोड़ी की नस्बी हालत। अच्छा, मैं ये स्लाइड ना स्किप करने की एक बड़ी वजह ये भी मुझे ऐसा लगता होता कि होती है, इसके ऊपर जो सवाल दिया गया होता ना उसमें बड़ी गाढ़ी उर्दू और ऐसे अल्फाज यूज होते हैं कि उनको देख के एकदम से इंसान कंफ्यूज हो जाता है। अच्छा जी, पूछा जा रहा है कि जमा के साथ ताल्लुक की जोड़ी की नस्ब वाली हालत, यानी कि मुदाफिल आपके पास जमा है, जो हाँ जी। आपने उसका पहला वाला निकालना वो ए नस्ब में होना ए और डी, ए और डी। चाहिए। अच्छा डी अच्छा जी, इसमें ए है करातु किताबा, करातु किताबाहुम। अच्छा, इनको इनको डी भी इसमें लाना चाहिए क्योंकि डी भी है। हाँ ठीक होना है, चाहिए। होना चाहिए। और किताबुल, अच्छा ये सवाल भी वही वाले जो अभी हमने किए हैं, इसमें से देखते हैं। जमा के साथ ताल्लुक की जोड़ी की मिसाल, फी हमारा हाजल मुदाफुल बैती। डी जी, जमा के साथ ताल्लुक की हाँ, जोड़ी, जमा जमा डी जमा वाला तो डी, डी है, सिर्फ डी। सिर्फ डी डी। खाली। ठीक हो गया। अच्छा जी, और अल्लाह वली है मोमिनों का, और अल्लाह वली है मोमिनों का। बी वल्लाहु वलियुल मुमिन। बी बी वल्लाहु वलियुल मुमिनीन, अल्हम्दुलिल्लाह। हल करअता किताबल मुस्लिमीना, सी सी सी। सी हल यक्तुबूना मिन किताबिल मुस्लिमीना, डी। डी। हल जालिका किताबुल मुस्लिमीना, ये उस तरह के सवाल लग रहे हैं जो हम किसी वन में कहते हैं, हुआ का जवाब हुआ से, हुम का जवाब हुम से, अब कहेंगे जालिका का जवाब जालिका बी से। बी, बी चले मजीद आसान हो गया। ये अब हम ले लेते हैं कुरान से, वल्लाहु वलियुल मुमिनीन, और अल्लाह मोमिनों का दोस्त है। अच्छा जी, और अतफ वाला हो गया, अतफ वाला हो गया, अल्लाहु मुबतदा वलियु खबर। और इसके बाद क्योंकि ये वलीयुन होना था खबर की सूरत में, लेकिन हमने कहा है कि मुदाफ पर ना तो अल आए ना ही तनवीन, अब ये क्या बन गया, वलीयु। अल वलीयु भी नहीं बना तनवीन गिराने की सूरत में, वलीयुल मुमिनीन। अब ये हमारा मुदाफ इलैहि बन गया। ठीक हो गया। वाह, और बेशक अल्लाह,
अन्ना का इसम हो गया इस्मु जलाला, इस्मु अन्ना। ये अन्ना है क्या वैसे? इन्ना की बहन। इन्ना की बहन है। और ये शुरू में नहीं आता, इसके पीछे जुमला है, ठीक है, इसके पीछे आयत है, क्योंकि वाव ने भी बता दिया ये अतफ हुआ है। ला युदिउ, ला नहीं। अच्छा, अब ये जो युदिउ है ये हमारा QC1 आ गया कि मुदारे की नफी ला के साथ, नहीं जाया करेगा। क्या जाया नहीं करेगा? अजरा। अब अगर ये मुदाफिले ना बन रहा होता तो ये अजरन भी आ सकता था, ठीक हो गया, या अल अजरा भी आ सकता था, दोनों सूरतें हो सकती थी, लेकिन अल और तनवीन नहीं आने, ठीक हो गया। अजरल मुमिनीना, ये हमारी जोड़ी बन गई। कज़ालिका, इसी तरह ही, यतबअल्लाहु, अल्लाह मोहर लगा देता है। यतबअु हमारा हुआ वाला फाइल है, सॉरी फेल है हुआ वाला। अब हुआ वाले फेल में फाइल जाहिर हो सकता है। अब ये इस्मु जलाला यतबाउ के लिए फाइल बन गया। इसी तरह अल्लाह मोहर लगाता है अला कुलूबी, कुलूबिल काफिरीना, जार मजरूर, और ये मुदाफ मुदाफिले। ये ऐसे छोटी छोटी तरकीब अपने इस पे भी लिख लें बुक में। और ये युदियु कहाँ से निकला होगा? अदा युदियु, अकामा युकीमु, अरादा युरीदु की तरह है। अच्छा, ये हमने ना जब हम टेबल लिखते हैं ना, पूरा टेबल, उसमें हम ये सारा कवर कर लेते हैं। जब हम कहते हैं किताबुहु, किताबुहुम, किताबुका, किताबी, किताबुकुम और किताबुना। ठीक हो गया। ये हमारा सारा का सारा मुदाफ मुदाफिले ये जोड़ी बन जाती है, ठीक है। यानी कि ज्यादा लोगों के लिए हम कर सकते हैं, तब्दीली नजर नहीं आएगी। क्यों नजर नहीं आएगी? क्योंकि जो हमारे ज़मायर हैं ये मबनी होते हैं, ये इन्होंने इसी हालत में रहना है। सिर्फ इनके हम इसको कहा करेंगे फी मुहल्ले जर। अभी नहीं कहना, QC6 में कहना है। अच्छा जी, क्या सिस्टर हफ्सा हमारे साथ है? सिस्टर आसिया, सिस्टर हफ्सा है हमारे साथ? वो ऑनलाइन तो है लेकिन शायद अब कुछ कर रही होंगी। वो कुछ कर नहीं रही, वो मुझे बेलें कर रही हैं। अच्छा, अच्छा, ट्राई टू इनका सिस्टर कुछ। की बेटी ने कर दिया, वो भी करती थी कभी कभी। फिर अच्छा। उसके बाद वो कहती है सिस्टर नौरीन, वो मैंने गलती से कर दिया था। अच्छा जी, चले। खाजा किताबु हम, मुस्लिमीन की जगह हम लगा लिया, बिल्कुल वही तरकीब मुस्लिमीना में यहाँ नजर आ रही थी, हम में नजर नहीं आना इसने। ठीक हो गया जी। ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह काफी किया। मैं थोड़ा सा काम आपको करवाना चाहती हूँ जरा सा, और इसको हम स्किप 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 कर दें तो। अच्छा जी, ये उसी तरह से आ गया जो मैं कहती हूँ ना कि पहले जार मजरूर की जोड़ी, उसके बाद मुरक्कबे इजाफी की जोड़ी, मिन दूनी दूनीहिम। अगर आप इसको इस तरह से बोलना सीख लेना, ये जुबान पे एक दफा आ गया, आपको कुरान पाक में से इतने ज्यादा मिलेंगे भी, और आपको ये मजा आया करेगा। मिन दूनी दूनीहिम, मिन दूनी दूनी का, इससे ये होगा कि आप दो दो जोड़ियां बोल रहे हैं, ठीक है। मिन दूनी के सिवा, के अलावा इसका माना है उसके सिवा, उस उन सब के अलावा, आपके अलावा, मेरे अलावा, आप सब के अलावा। दो दो जोड़ियां जब पहचाननी आ जाए इकट्ठी इकट्ठी, तो बहुत ये आसानी हो जाती है। आज आपके साथ इंशाल्लाह कबला और बादा वाला एक नोट भी शेयर करती हूँ। इसमें आपने एक चीज सिर्फ याद रख लेनी है, ये याद आहिस्ता आहिस्ता होगी, ठीक है। मैं आपको ये
फोर्स कर भी नहीं रही कि आपने इसको आज ही सुना आज ही याद कर ले। अच्छा जी, क़ब्ल और बादा, ये जो दो अल्फाज हैं, जब इनके बाद में मुदाफ इले मौजूद होगा तब ये हरकत बदलेंगे। कैसे? अगर सिर्फ हो मिन तो ये हमें नजर आएगा कबलू, ठीक है। क्यों मिन कबलू? इसके आगे मुदाफ इले मौजूद नहीं है, ये हर जगह पर मिन कबलू ही रहेगा, ठीक है। फिर उस सूरत में हमने ये जो हमारा मुदाफ है ना, ये मुदाफ होने की सूरत में ही हम देखते हैं कि इसके नीचे जो मिन ने जेर दी है, ठीक है। वरना ये कबला रहेगा या कबलू रहेगा, इसको ज्यादातर कबलू और बादू ये इस तरह से आएंगे। जब भी इसकी हरकत बदलनी होगी तो उसके आगे एक हमारे पास मुदाफ इले मौजूद होना चाहिए, ठीक है। कबलू बादू। और ये जो कबला और बादा है ये कहाँ पर आएंगे? ये हमारे जो इस्म ज़र्फ़े ज़मा ज़र्फ़े मकान। अभी हम एक चीज को याद कर लेते हैं, हम याद कर लेते हैं कि अगर मिन कबल के बाद हमें मुदाफिले नजर आए तो मिन कबली होगा, वरना इसको हम मिन कबलू पढ़ते हैं। आप इसकी कुरान पाक में भी इसकी मिसालें देख भी सकते हैं, और मुझे ऐसे लग रहा है कि 2 3 4 लेसन पहले भी हमारी बुक में भी था कि मिन था उसके बाद कबलू था। तो तब बदलेगा जब इसके बाद मुदाफिले नजर आ रहा हो। अब वो मुदाफिले इसी तरह से जमायर की सूरत में भी हो सकता है, किसी इस्म की सूरत में भी हो सकता है, और भी बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन अभी हम इसके लिए ये इतना समझ लेते हैं कि अगर मुदाफिले होगा तो फिर ये जो हरफे जर है उस पर असर डालेगा। मिन कबली ही, मिन कबली हिम, मिन कबली का, मिन कबली, मिन कबली को, मिन कबलीना और मिन कबलीहा। ये आपकी बुक में जहां पर नीचे 3 टेबल लिखे हैं उसके साथ ही आप ये लिख लें कि मुदाफ इले होने की सूरत में मिन का असर नजर आएगा। इसी तरह से बादू भी तब आपको बादी नजर आएगा, मिन के बाद, अन के बाद या किसी भी हरफ जर के बाद अगर उसका मुदाफ इले मौजूद हो। मुदाफ इले मौजूद ना होने की सूरत में हम इसको बादू ही पढ़ेंगे। मिम बादी ही, मिम बादी हिम, मिम बादी का, मिम बादी, मिम बादी को, मिम बादीना और मिम बादी। हाँ, ऐसा लग रहा है QC1 में वापस जा रहे हैं। तो QC1 में हमने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन कैसे पढ़ा था? हमने इसको इस तरह पढ़ा था कि सिर्फ इसको सीख लिया था कि इस तरह से टेबल बनाए जाते हैं, हमने इसको नाम नहीं याद किए थे। एक चीज जो मैं बताना चाह रही थी आपको, कुरान से ही इसकी मिसाल देखते हैं। हम कहते हैं तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। तब्बत यानी कि टूट जाए, टूट गए क्या? हाथ। यदानी, ठीक है, यदानी था, यदा रह गया, नून गिर गया। अभी, अभी जो है अभी के लिए ये मुदाफ बना, ये इसका मुदाफुन इले बन गया, ठीक है। आप इसको खोल के भी देखिएगा, दोनों हाथ वहां तर्जुमा होगा कि टूट गए अभी लाहब के दोनों हाथ। इसी तरह से एक और जगह पर आया है मुरसल वाला था, इन्ना, बेशक हमने, मुरसिलू, नाकत। अच्छा जी, ये ऊंटनी किसके पास आई थी? कौन से नबी थे? हजरत सोलेह। हजरत स्वाले। बेशक हम ही भेजने वाले हैं। मुरसिलुन, मुरसिलूना था ना, मुरसिलुन से मुरसिलूना। अब ये था इन्ना
मुरसिलूना अन्नाक़ती, बेशक हम ही भेजने वाले हैं ऊंटनी को। अब चूंकि इसने बनना था मुदाफ, तो इसका नून ड्रॉप हो गया, अल नहीं आ सकता, अल मुरसलुन हो ही नहीं सकता था, तो मुरसिलू नून भी गिर गया, जैसे तनवीन गिरा करती है, तो उसके आगे फिर आ गया नाक़ता ती, सॉरी, ठीक है। इन्ना मुरसिलू नाक़ती, ये हमारा तस्निया है और ये हमारा जमा है, ठीक हो गया। जबकि जो होगा मुकस्सर जमा, अबवाब समाई, अबवाब समाई, उसमें कुछ नहीं गिराना, ठीक है हो गया। आसमान के दरवाजे। कोई और मिसाल भी उसमें हम ढूंढ लेते हैं जमा जमा वाली। अच्छा, जैसे ये जो कबलू बादू ये आ जाते हैं ना मुदाफ बन के, इसी तरह से बैना, दूना, गैरा, ये भी ऐसे ही होते हैं। ये अल्फाज इनके आगे जो भी, जैसे बैनल बहरैनी, ठीक है, बहरैन यानी दरियाओं के दरमियान में, मिन दूनिहिम वाला कर लिया, गैरुल्लाजी, तो ये जो है ये सारे भी मुदाफ बन के आते हैं। और कोई मिसाल हम ढूंढ लेते हैं बुक में से। हाँ, एक है स्वाहिबा, स्वाहिब यस्सिजनी, ये था स्वाहिबैनी अस्सिजनी। ये है सूरह यूसुफ में, वो कहते ए मेरे कैद के दो साथियों, तो यहाँ भी ये जो था नून ड्रॉप हो गया, तो ये फिर इसको या को आगे सिजन से मिला दिया गया। इसकी बाकी मिसालें इंशाल्लाह मैं आपको लिख के भेजती हूँ ग्रुप में, आप फिर उसको कोशिश कीजिएगा कि उसको इस फॉर्म में लिखें कि ये पहले क्या था, तो मुदाफ इलैह बनने की सूरत में क्या बन गया, ठीक है क्या। बाकी इसके जो 6-7 पॉइंट है वो मैं लिख के आपके साथ शेयर करती हूँ, उसको स्टार कर लीजिएगा ताकि वो बार बार देखें तो बार बार आपको याद भी आ जाए। थोड़े से फिर मैं आपको भेजूंगी बगैर एराब लगाए हुए, यानी कि अलामात लगाए बगैर, उनको आप फिर मुरक्कबे इजाफी, इसमें जब आपके पास पीछे कोई जुमला ना हो तो फिर आप पहले वाले को दोम्मा दे सकते हैं, फिर उसमें ये नहीं होता कि आपने उसको जेर देनी, जबर देनी या पेश देनी है। हाँ, पीछे कोई मजरूर लफ्ज लिखा, वो हरफ जर लिखा हो, उसको आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम थोड़ी सी मिसालें कर लेंगे पेचीदा मुरक्कबे इजाफी वाली, यानी कि जो 2 बार जोड़ी बन रही हो मुरक्कबे इजाफी की, जैसे मालिक यौमिद्दीन, ठीक हो गया जी। अब अगर किसी का कोई सवाल वगैरह है तो जरूर कर लीजिए, हमारे पास 10 मिनट तो तकरीबन है। अच्छा, अगर हम थोड़ी से उर्दू से बनाएं अरबी, कुछ ऐसे भी आसान आसान वाले भेजूं, बोला करें बोला करें। और जिसकी अरबी नहीं आएगी अरबी भी मैं साथ साथ भेज दूंगी, ठीक है। चले इसका ठीक। फायदा ये हो जाएगा, मुरकबे इजाफी, मुरकबे तौसीफी, मुरकबे जारी और मुरकबे इशारी, ये सारी चीजें कुरान पाक में से निकाल निकाल के ना मिसालें, उनको फिर समझा गया, उनको देखा गया, ताकि कुरान पाक ज्यादा से ज्यादा हमारी समझ में आए। तो जोड़ियां जूड़ियां ग्रामर पढ़ाने का मकसद ये नहीं है कि आप परेशान हो जाएं या आपको लगे कि मैं आपको बहुत ज्यादा काम करवा रही हूँ। ये काम अभी कर लेंगे तो अभी आपके पास खास तौर पर कुरान मजीद वाला काम जो पार्ट 1 का वो कम है, QC6 में ये वाला काम बढ़ जाएगा, नहवी तरकीब मजीद आगे बढ़ती जाएगी, तो ये सारा कुछ पहले से आता होगा तो आपको इंशाल्लाह बहुत आसानी हो जाएगी। सिस्टर आसिया ने हैंड रेज किया है। हाँ जी सिस्टर नौरीन, ये जो अभी आपने कबलू और बादू की बात बताई है, ये गैरा पे भी होगी या गैरा नहीं? क्योंकि मैंने पीछे देखा आपने हमें कुछ नहीं, तो एक दफा। गैरा को रहने दे, इसमें अच्छा सिर्फ कबला, कबलू और बादू, ये मैं आपको लिखा हुआ नोट भेजती हूँ, ये हमारे सारे एक नोट भेजते होते हैं, फिर हम उसको भी बार बार देखते हैं, हम भी ऐसे ये बार बार भूल जाते हैं, फिर हम उसको निकाल निकाल के देखते हैं, अच्छा ये लिखा हुआ था, सर ने ये बताया हुआ था, क्योंकि फिर आगे आगे हमने और मजीद इसमें चीजें ऐड करते जाना है ना, तो इंसानी फितरत है ना कि इंसान भूलता है,
پھر یاد کرتا ہے، پھر بھولتا ہے، پھر جتنی ہم پریکٹس کرتے جائیں گے انشاءاللہ یاد آتا جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ چلیے جی، پھر اجازت دے دیجیے. اگر کسی کا اور کوئی سوال نہیں ہے تو اس کو ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں. اچھا جی، جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ اب آپ کے پاس ٹائم ہے، یہ جو کلاسز اب ہماری منڈے کو نہیں ہے اس کے بعد کلاس، تو سسٹر اقصیٰ تو میرے خیال سے بھیجتی ہیں فرائیڈے کو. تو اس سے پہلے کوشش کر کے یہ 2 دن میں آپ یہ چھوٹی چھوٹی، میں زیادہ بڑی بڑی والی نہیں دوں گی، چھوٹی چھوٹی سی آپ کو اسائنمنٹس بنا بنا کے دوں گی کہ اس کا آپ اردو بنا لیں، اس کا آپ اس کے اوپر علامتیں لگا لیں. وہ آپ کا اچھا پکا ہو جائے گا. پھر انشاءاللہ جو سسٹر اقصیٰ آپ کو دیں گی اس کی بھی آپ کو صحیح سے سمجھ آ جائے گی. ویسے تو مرکب اضافی کافی حد تک ہو گیا ہوا ہے. مجھے ایسے لگتا ہے آپ کو تھوڑی تھوڑی سی پریشانی تھی مرکب توصیفی میں، تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی اسی طرح سے کوشش کر کے مثالیں نکال کے پھر مزید سے مزید سمجھتے جائیں گے. باقی جیسے جیسے آپ لوگ بتاتے جائیں گے کہ یہاں پر مشکل آ رہی ہے، یہاں پر دوبارہ سمجھنے کی بات ہے، تو انشاءاللہ ہم حاضر ہیں. اے اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ وعلیکم السلام. خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ آپ میری دعاؤں میں شامل ہیں کیونکہ آپ میرے بچے ہیں. اللہ حافظ. سسٹر اللہ حافظ.